السلام علیکم سامعین، حاضر ہیں اس ناول کی ایک اگلی قسط کے ساتھ۔ لیکن آپ لوگ ہمارا چینل تو سبسکرائب کر ہی نہیں رہے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر نہیں کریں گے تو ہم کیسے اچھے اچھے ناول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے؟ اس لیے پلیز پلیز ہمارے ناول کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیجیے اور اچھے اچھے ناولز ہماری آواز میں سنتے رہیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ یہ چراغ بے نظر ہے، یہ ستارہ بے زباں ہے۔ یہ چراغ بے نظر ہے، یہ ستارہ بے زباں ہے۔ ابھی تجھ سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے؟ کبھی پا کے تجھ کو کھونا، کبھی کھو کے تجھ کو پانا، یہ جنم جنم کا رشتہ تیرے میرے درمیاں ہے۔ گلوکار کی آواز دلکش تھی کہ اس کے اندر ایک طغیانی سی تھی۔ رضا حمید کو اپنی آنکھیں بھیگتی محسوس ہوئیں۔ بعض اوقات شاعر حضرات بھی کیسے کیسے دل کی بات لفظوں میں کہہ جاتے ہیں۔ کرسی پر جھولتے ہوئے وہ اپنے تخیل کی وادیوں میں الجھتے ہوئے نہ جانے کہاں جا بھٹکا تھا، جہاں خوشیاں تھیں، قہقہے تھے، خواب تھے، ارمان تھے اور نویرہ احسان تھے۔ تو یہ طے ہے نویرہ احسان، تم اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا ایک ناسور بن جاؤ گی، ایک رشتہ ہوا ناسور۔ میں تو تمہیں اپنا حال دل کہہ بھی نہیں سکتا۔ کاش میں کچھ کہہ دیتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ نویرہ احسان، تم تو نواز فاروق کی قسمت کا درخشاں ستارہ ہو۔ میں نے امی کے سامنے اپنے راز دل کی افشانی سے اگر خوش نہیں ہوں تو نادم بھی نہیں ہوں۔ تمہیں پانا میرے اختیار میں نہیں، مگر میری دعا ہے نواز فاروق، اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ تمہیں دامن تنگ پڑتا محسوس ہو۔ تم نے شاید مجھے کبھی ایک کزن، ایک چھوٹے بھائی کے علاوہ کبھی اہمیت نہ دی ہو، مگر میرا دل تو تمہاری دھڑکنوں کے یقین کا خواہاں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کا تمہارے دل سے ایسا ربط بن گیا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو تو میری روح تک تڑپ اٹھتی ہے۔ یہ محبت ہے، یہ احساس کا جاویدہ تخیل جو تمہاری ذات سے وابستہ ہو چکا ہے۔ نرمی سے اپنی دائیں آنکھ کی نمی انگلی سے جھاڑتے ہوئے اس نے اپنے خیالات کے تسلسل کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے رضا حیدر اسی طرح کرسی پر پاؤں پھیلائے دنیا و مافیہا سے بے خبر اپنے آپ سے ہی نبرد آزما تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سو چکا تھا، گہری نیند میں تھا۔ وہ خواب تھا یا کوئی وہم، سوتے میں اسے بری طرح جگا گیا تھا۔ وہ تو کبھی بھول کبھی نویرہ کا برا نہیں چاہ سکتا تھا، پر خواب کیسا تھا؟ وہ اٹھ بیٹھا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود اسے اپنے جسم سے پسینے چھوٹتے محسوس ہوئے تھے، اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے بڑی اماں کی ہاں کال ملا دی تھی۔ امی سے ہی پتہ چلا تھا کہ نویرہ ادھر ہے، اور کال نویرہ نے ہی ریسیو کی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد اسے مطمئن و پرسکون ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ سو بھی نہیں سکا تھا۔ دل کو گویا پتنگے سے لگے ہوئے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نویرہ احسان تک جا پہنچے، اس سے اپنے دل کی بے قراری بتائے، اپنے دل کے تمام رازوں کو اس پر آشکار کر دے، مگر وہ مجبور تھا، بہت زیادہ۔ کمرے میں زیرو پاور کے بلب کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل کی وحشت کا عجیب عالم تھا۔ نویرہ احسان، تمہیں تو شاید گمان بھی نہ ہو یہاں کسی کی زندگی کن طوفانوں کی زد پر ہے، کوئی کیسے جیتا ہے اور کیسے دل کو بہلاتا ہے۔ کاش محبت کرنا میرے اختیار میں ہوتا۔ وہ بلک اٹھا تھا، کیا دل کے زخموں سے خون رسے لگا ہو۔ یہ رات رضا حمید پر بہت بھاری تھی۔ دل نے جس کی چاہ کی تھی، وقت گزرا تو دل کی چوری بھی کھلی، اور تب کچھ بھی اختیار میں نہیں تھا۔ وہ نارسائی کا غم نہیں منانا چاہتا تھا، مگر یہ یاد بھی کیسے کیسے انسان کو دیوانہ بناتی ہے۔ ہوش و خرد سے بیگانہ انسان مجنوں بن جاتا ہے، فرحات کا لقب پا لیتا ہے۔ ہائے انسان! رضا نے خاموشی سے اٹھ کر ریکارڈر بند کیا تھا، بھیگے چہرے سمیٹ کر وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھا، بھیگی متورم آنکھیں رضا کی پلکیں پھر بوجھل ہونے لگیں۔ یا اللہ، میں سب کچھ مان چکا ہوں، میں نے اپنے دل کا اختیار تجھے سونپا، بس تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ مجھے اپنی فکر نہیں، فکر ہے نویرہ احسان کی۔ وہ دودھ کی طرح پاک صاف لڑکی میری نارسائیوں میں، میری رسوائیوں کی حقدار نہیں۔ بس مجھے تھوڑا صبر دے، حوصلہ دے، مجھے اتنی استقامت بخش کہ اپنے نفس کے عذاب میں تنہا جھیل سکوں۔ منہ دھوتے وضو کرتے اس کے ہونٹوں پر التجائیں تھی، صدائیں تھی، خاموش دعائیں تھیں۔ ماں کو اپنی کیفیت بتا چکا تھا، اس کی ماں کے اختیار میں اب کچھ بھی نہ تھا۔ اب اس کا درد سننے والا صرف اللہ تھا، جس کے اختیار میں سب کچھ تھا۔ بے شک وہ برحق کہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
उसने जाए नमाज बिछाई थी। बड़े खुशो गुजू से रुकू और सुजूद करते उसके दिल और दिमाग का गुबार छटता चला गया था। रफ्ता रफ्ता उसके अंदर एक सुकून की कैफियत उतरती रही। दिल मुतमईन होता चला गया। दिल की वहशत और बेसकूनी एक मशहूर कुन ठहराव से दो चार होती चली गई। रूह कल्ब में इत्मीनान की सदाएं गूंजने लगीं। खुदा का कलाम बरहक है। अल्लाह ने सच फरमाया है, ए ईमान वालों, नमाज और सब्र से सहारा तलाश करो। मोमिन की तो निशानी ही यही है कि वो हर हाल में खुदा को पुकारे, सिर्फ उसी के सामने दस्त दराज हो। खुदा के हुजूर सर झुकाए, लरजते लब, कांपते होंठों से हाथ फैलाए हुए उसके होंठों पर सिर्फ यही दुआ थी, या अल्लाह, नवेरा एहसान को सारी जिंदगी की खुशियां दे दे। मैंने मुकद्दर की खुशियां भी उसके नाम लिख दे। उसे हर गम, हर तकलीफ, हर जिल्लत और शर्मिंदगी से बचा ले परवरदिगार। उसे हर गम और तकलीफ से बचा ले और मुझे सब्र और सकून दे। मेरे दिल की आग बुझा दे। बेशक हर चीज़ पर तू कादिर है। मेरी ज़ात पर तेरा ही इख्तियार है। बेशक तू रात की तारीकियों में मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल करता है। उसके लब हौले हौले हिल रहे थे। उसका दिल अर्श की तरफ महवे परवास था। रगो पै में एक सकून और इत्मीनान की कैफियत उतरती चली गई। बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब ज़रूर दूंगा। नवेरा एहसान को अपने आसाब अपने बस से बाहर होते महसूस हुए थे। शारिक जुमान उस पर झुका था। नवेरा एहसान अपनी फटी फटी आंखों से कुछ समझने की पोजीशन में बिल्कुल बेसुध खड़ी थी। पीछे दीवार थी, दाएं बाएं फरार की तमाम राहें मसदूद थी और सामने वही था। एतबार इस तरह भी मजरू होता है, उसे कभी गुमान भी न था। अपने यूं भी नकबजनी करने चले आते हैं। नवेरा की पलकों से आंसू बहते चले गए। क्यों रोती हो? इतने अहम है ये मोती, इतनी बेदर्दी से बहाओगी तो बाकी क्या रह जाएगा? वैसे भी मुझे औरतों का आंसू बहाना जहर लगता है, मगर इस वक्त तुम पर प्यार आ रहा है। नवेरा एहसान मेरे सामने मेरे यूं इतने करीब है, मैं उसे छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। वो वाकई होश में नहीं था। शारिक जुमान अगर होश में होता तो उसे एहसास होता कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और सबसे बढ़कर किसके सामने कह रहा है। शारिक जुमान ने उसे कंधों से थाम लिया था। नवेरा को लगा जैसे किसी ने आंख में झोंक दिया हो। पूरा बदन जल उठा। वो तड़प तड़प उठी। शारिक जुमान की आहीनी गिरफ्त में मचल मचल गई। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ो। बड़ी शदीद मज़ाहमत लिए वो उसकी आहीनी गिरफ्त से अपना आप छुड़ाने को तड़प रही थी, मगर शारिक जुमान पर उसके रोने, गड़गड़ाने, मचलने, तड़पने किसी का भी अमल का असर न हुआ था। नवेरा की चादर उसके कंधों से गिर कर कालीन पर अपने ही पैरों तले उलझ गई थी। खुदा के लिए शारिक भाई, इतना जुल्म न करें, छोड़े मुझे, कुछ तो ख्याल करें। मैं आपकी इज्जत हूँ, इस खानदान की बेटी हूँ। नवेरा के हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे थे। वो चीख रही थी, मगर दूसरी तरफ इस वक्त इंसान नहीं, कोई जल्लाद, सिर्फ शैतान था जिस पर उसकी किसी भी चीखो पुकार का कतई असर न था। रोना गिड़गिड़ाना कतई बेसूद था। इतना शोर क्यों कर रही हो? यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम्हें शायद इल्म हो कि मेरा ये रूम साउंड प्रूफ है। फिर अम्मा मेडिसिन लेकर सोई हैं, इतनी जल्दी नहीं उठेंगी। उसके चीखने चिल्लाने पर शारिक जुमान ने बरहमी से उसे झड़क दिया। छोड़े मुझे अंदाजा नहीं था आप इतने घटिया हो सकते हैं। मेरी अम्मा इतना एतबार करती थी आप पर। खुदा के लिए इतना तो सोचें, कोई गैर नहीं, सगी चचा जाद हूँ आपकी। नबील भाई, नवाज, अम्मा, किसी का तो ख्याल करें। उसकी गिरफ्त में वो भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। नवीरो, मुझे मजबूर न करो कि तुम पर हाथ उठाऊं। उसे किसी भी तरह काबू में न आता देखकर शारिक जुमान फनकारा था। उसके फनकार में नवेरा को अजदों की सी लपक महसूस हुई। वैसे इतनी नाजुक सी तो हो, ये क़यामत सी मज़ाहमत कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? दूसरे ही लम्हे वो नरमी से पूछ रहा था। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं, छोड़े मुझे। नवेरा को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। बस लग रहा था कि किसी भी पल रूह उसके जिस्म का साथ छोड़ देगी। तुम मुझ पर रहम खाओ, तुम्हें वाकई मुझ पर तरस नहीं आ रहा? यकीन करो, कभी मैंने किसी औरत को अपना इतना करीब नहीं किया। हज़ारों से दोस्ती है, हुस्न बहुत है, मगर अंदर से सब खाली है। और तुम? उसने नवेरा की आंसुओं से लबरेज निगाहों को बगौर देखा था, फिर मुस्कुराया। और तुम उन सब से मुख्तलिफ हो। पहली दफ़ा तुम्हारे इस ढके छुपे अंदाज ने मुझे तुम्हारी तरफ राग़िब किया था। ऐसी औरत बहुत बड़ा राज होती है, मेरे दिल के अंदर जख्म करती गई हो। तुम जानती ही नहीं हो तुम क्या हो। नवेरा का दिल रो दिया था। एकदम अल्लाह से दिल से मौत मांगी थी। ऐसे भी लोग होते हैं, बेज़मीर, घटिया। नवेरा एहसान, जो हमेशा अपने आप को सींचती संभालती आई थी, स्कूल और कॉलेज के दौरान हज़ार वालेहाना निगाहों ने पयाम दिए थे,
मगर कभी निगाह उठा के न दी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे ये पसंद नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसके मजहब में उसकी गुंजाइश नहीं थी, उसकी तरबियत में ये असर नहीं था, और ये शख्स न जाने उसके किन गुनाहों का असर था। वो फूट फूट कर रोई। इंतहाई कैफियत में उसने शारिक जुमान का चेहरा गिरेबान नोच खसोट डाला था। न जाने उसके अंदर इतनी ताकत एकदम कहाँ से आ ठहरी थी। शारिक जुमान उससे बाजू की गिरफ्त में लिए मुसलसल उसके हाथ रोकने की कोशिश में था, मगर वो काबू में नहीं आ रही थी। शारिक जुमान ने बाजू उसकी कमर से हटाकर उसे दोनों हाथों से थामना चाहा था, तभी वो उसे पीछे धकेलती बिस्तर से उतर कर भागी थी। ऑटोमेटिक दरवाजे का बोल्ट घबराहट और अफरा तफरी में उससे खुल नहीं रहा था। लम्हों में शारिक जुमान उसके सर पर था। नवेरा, तुम कौम को अपना भी वक्त जाया कर रही हो और मेरा भी। उसे बाजू से पकड़कर उसने गुस्से से झिड़का था। नवेरा ने नफरत से उसके मुंह पर थूक दिया। तुम्हारी औकात इससे ज्यादा मेरी नजर में नहीं है, समझे तुम? नफरत, गम, बेबसी, क्या कुछ नहीं था उस वक्त नवेरा के लहजे में। तुमने मुझ पर थूका है। शारिक जुमान ने गुस्से से उसे एकदम झंझोड़ डाला। एक थप्पड़ खींच कर उसके रुखसार पर मारा था। इतना जोरदार थप्पड़ कि नवेरा को अपने सामने तारे से नाचते महसूस हुए। बहुत लिहाज कर रहा हूं मैं तुम्हारा, अब नहीं। तुम मेरी ख्वाबगाह में हो, अब मेरी मर्जी से ही बाहर निकल सकती हो। उसके वहशी लहजे की फनकारें एक पल को नवेरा के आसाब को सहमा गई थी, मगर अगले ही लम्हे वो बिफर गई। मैं मर जाऊंगी शारिक जुमान, मगर तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। वो पूरी कुव्वत से चीखी थी। अपने कदमों पर वो एकदम मजबूत हुई थी, जैसे मौत से लड़ता इंसान आखिरी पल जिंदा रहने की कोशिश करता है, या फिर मौत के एहसास से बेनियाज शख्स हर चीज भूल जाता है। वो भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। उसके गले की जंजीर टूट कर गिरी थी। शारिक जुमान के सख्त पथरीले हाथों से नवेरा का दुपट्टा फिसलता चला गया। नवेरा को कुछ समझ न आई तो उसने पूरी कुव्वत से शारिक जुमान को पीछे की तरफ धकेला था। लड़खड़ाती चाल समेत शारिक दीवार के साथ जा लगा था। नवेरा ने जोर से उसका सर पूरी कुव्वत से दीवार के साथ मारा था। इस वक्त उसके सर पर अपने आप को बचाने का सौदा सवार था, चाहे कुछ भी हो। एक लम्हे को तो शारिक जुमान भी बेहवास हुआ था। हाथों की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली हुई थी। नवेरा ने उस लम्हे से फायदा उठाया था। फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, हैंडल घुमाया, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। शारिक जुमान संभल रहा था। अपने सर को थामते वो हरकत कर रहा था। इससे पहले कि वो नवेरा के करीब पहुंचता, नवेरा ने इंतहाई बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा और फिर बाथरूम की तरफ। उसकी आंखों में चमक आई थी। बाथरूम में घुसकर उसने न सिर्फ दरवाजा लॉक किया था, बल्कि चटखनी भी चढ़ा दी थी। दरवाजे के साथ लगकर वो थर थर कांपने लगी थी। दरवाजा खोलो नवेरा, दरवाजा खोलो। शारिक जुमान दरवाजे को ठोकरे मार रहा था, मगर नवेरा पूरी कुव्वत से दरवाजे से टेक लगाए खड़ी रही। वो तो बमुश्किल बच पाई थी। अब कैसे उस कैद से निकलती? जूते वहीं कहीं रह गए थे। ठंडा फर्श इस मौसम में उसके वजूद को नुकसान पहुंचा सकता था, मगर जब हर इंसान हर एहसास से बेगाना हो जाए तो फिर दूसरी हाजात बहुत बेमायने से महसूस होने लगती हैं। दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से धकेला जा रहा था। नवेरा को महसूस हुआ कि कहीं वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल ना हो जाए। उसके दिल का खौफ बढ़ा था। वो एकदम दरवाज़ा से हटकर चारों तरफ देखने लगी। बाथरूम में सिर्फ यही एक दरवाज़ा था। एक रोशनदान था, मगर वो बहुत ऊंचा था। वहां तक वो पहुंच भी जाती तो बाहर निकलना नामुमकिन था, क्योंकि वो रोशनदान घर के उक़ब में ना जाने किस तरफ खुलता था। अब सिर्फ एक ही सूरत रह जाती थी कि वो इसी कैद खाने में रहकर अपने बचाव का सामान करती। वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे के ऊपर शेव का सारा सामान रखा हुआ था। शैम्पू, ब्रश, हर चीज थी। नवेरा का जहन लम्हों में हर नफो नुकसान से आजाद हुआ था। शेविंग सामान में पड़ा हुआ ब्लेड का पैकेट उसने थाम लिया था। बाहर अभी भी दरवाजा पीटा जा रहा था। शारिक जुमान अभी भी चीख रहा था। एक नजर दरवाजे को देखते उसने पैकेट में से एक ब्लेड निकाल लिया था। बाकी पैकेट मुट्ठी में दबाए उसने वो ब्लेड अपनी आंखों के सामने खड़ा किया था। या तो मर जाऊंगी या मार डालूंगी। उसकी आंखों में एक अज़्म सा पैदा हुआ था। सारा डर, खौफ व हिरास अपने पांव पर सर रखे भाग निकला था। अली ने कॉल करके डॉक्टर मुर्तजा को बुलाया था। डॉक्टर ने आते ही चेकअप के बाद एक इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? सईद अहमद काफ़ी मुतफक्किर थे। ताहिरा बेगम भी पास बैठी हुई थी। नहीं, बस मौसमी अटैक लग रहा है। फिजिकली तो बच्ची नॉर्मल ही महसूस हो रही है। हाँ, हो सकता है कोई ज़हनी टेंशन हो। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को देखा और सईद अहमद ने ताहिरा को। वो खुद भी हैरान थी। फराह को बैठे बैठाए किस टेंशन ने आ लिया था कि वो मिनटों में गाफिल हो गई थी। नहीं, कोई टेंशन तो नहीं, अच्छी भली रही थी सारा दिन। हाँ, मौसमी अटैक हो सकता है। उन्होंने फौरन तरदीद कर दी थी। डॉक्टर ने सर हिलाते बेड पर कुछ मेडिसिन लिखी थी
सईद साहब ये मंगवा लें, ऊपर दर्ज हिदायत के मुताबिक यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह सुबह तक बच्ची की तबीयत बहाल हो जाएगी। सईद साहब ने पर्चा थाम लिया था। चंद हिदायत के बाद डॉक्टर साहब रुखसत हो गए थे। फरा अभी भी गुनूदगी की कैफियत में थी। अली खामोशी से बिस्तर की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। फरा उन सब की लाडली ही नहीं, चहीती भी थी। निहायत हसास और समझदार सी बहन 3 भाइयों की जान थी, और सईद अहमद तो उससे खुसूसी लगाव रखते थे। बेटी रहमत होती है। फरा की पैदाइश पर सबसे ज्यादा वही खुश हुए थे। बेटी का खास ख्याल भी रखते थे। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझते थे। वो तो बड़ी सी बड़ी बात पर भी कभी बीमार नहीं हुई थी। बहुत कम उसे बुखार हुआ था, मगर आज वो फिजिकली हमेशा से बहुत मजबूत रही थी। क्या टेंशन ली होगी उसने? चौकीदार के बेटे को मेडिसिन लाने को भेजकर वो मुसलसल यही सोचते रहे थे। इंजेक्शन का असर था कि घंटे बाद फरा की गुनूदगी कम होना शुरू हो गई थी। ताहिरा बेगम ने उसे खाना खिलाकर मेडिसिन दी थी। अली और सईद अहमद ने भी उसे हवास में आते देखकर खाना खाया था। ताहिरा बेगम फरा के सिरहाने बैठी उसका सर दबाती रही थी। 10 बजे के करीब सुमान की वापसी हुई थी। अली से भी फरा की खराब तबीयत का सुनकर फौरन उसके कमरे की तरफ आया था। क्या हुआ? कैसे हो गई तबीयत खराब? वो शायद मेडिसिन की वजह से सो चुकी थी। ताहिरा बेगम उसका सर दबा रही थी। परेशानी से दरियाफ्त करते फरा का चेहरा देखते उसके पास से बिस्तर के किनारे पर टेक गया था। पता नहीं, डॉक्टर कह रहा था कि शायद कोई टेंशन ली है इसने। भला ऐसी क्या टेंशन ले ली इसने? इस घर में तो 24 घंटे टेंशन की फिजा बरकरार रहती है। ऐसे माहौल में तो इंसान बड़ी से बड़ी टेंशन में भी बहाल रहता है। मेरा ख्याल है मौसमी अटैक है और कुछ नहीं। टेंशन के तो अब इस घर में सभी आदी हैं। सुमान अहमद ने सिर्फ माँ की सूरत देखी थी। दिल तो चाह कह दे, आप बेटी की माँ होकर इतनी गाफिल कैसे रह गई कि बेटी अनजान शख्स की धमकियों से खुद ही लड़ती रही। सबसे ज्यादा घर में फराह के साथ उनका और अली का ही वक्त गुजरता था। ऐसे में फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ और ताहिरा बेगम बेखबर हो। सुमान को हजम नहीं हो रहा था। वो तो औलाद के सिलसिले में काफी तेज निगाही का मुजाहिरा करती थी, फिर इस मामले में उनसे कैसी चूक हो गई, कैसी कोताही हो गई कि फराह इस हद तक चली गई, बल्कि उस शख्स के फ्रेब में फंस गई। तुम्हारा नंबर बंद था। अली ने कितनी दफा नंबर मिलाया था? अब अक्सर तुम नंबर बंद करने लग गए हो, खैरियत? शकी अंदाज में वो तफ्तीश कर रही थी। वही शकी अंदाज जो अगर वालदैन की तरफ से हो तो औलाद के सीने में गहरा शगाफ डाल देता है। उस समय सुमान अहमद ने खुद को खासा बेबस महसूस किया। क्या मतलब? एक लम्हे को तलखी पूरे वजूद में सिरायत कर गई। साफ वाज़ेह सवाल है। जाहिर है तुम्हारा नंबर बंद था। तुम्हारे वालिद साहब खास से मुतफक्किर थे। मुझे तो मीटिंग में कहकर गए थे। अब मैं क्या जानूं तुम कहाँ थे, नंबर क्यों बंद था? परेशानी तो फितरी सी बात है। सुमान अहमद के अंदर शदीद मज़ाहमत अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। इस्लामाबाद वाली हरकत के बाद ताहिरा बेगम अब सुमान अहमद की हर हरकत को मशकूक नजरों से जांच रही थी। सुमान अहमद अच्छी तरह समझ रहा था, मगर कुछ भी कहने से कासिर था कि मुकाबिल उसकी माँ थी। वो रिश्तों को अहमियत देने वाला, उनकी कदर करने वाला इंसान था। माँ की तरफ से इस कदर बेयकीनी और शदीद बेएतबारी की वजह से सुमान अहमद खुद को कुछ भी कहने से बमुश्किल रोक पाया था कि रिश्तों का एहतराम वो हर हाल में करने वाला इंसान था। हालात कुछ भी हों, उसने अपनी माँ की हर मौके पर इज्जत की थी। मीटिंग के दौरान डिस्टर्बेंस की वजह से नंबर ऑफ किया था, और कोई बात नहीं। मजीद आप जो भी सोचें ये आपकी ज़हनी इख्तिरा है। हर इंसान अपने सोचे समझने में आज़ाद है। मैं क्या कह सकता हूँ? ना चाहते हुए भी तलखी नो के जुबान पर दर आई थी। ताहिरा बेगम ने खुशमगी नजरों से देखा। मेडिसिन ली? डॉक्टर को दिखाया? कबल इसकी कि वो भी जवाबन टेम्परमेंट लूज करती, सुमान ने बात ही बदल दी। हाँ, डॉक्टर मुर्तज़ा आकर देख गए हैं। इंजेक्शन लगाया था, मेडिसिन भी खिला दी है। उन्होंने भी खुद को नॉर्मल करते फराह की तरफ तवज्जो थी। ये सो चुकी है। मेरा ख्याल है कि अब सुबह तक इसकी आंख नहीं खुलेगी। आप भी आराम करें। फराह की पेशानी छूकर हरारत चेक करते सुमान ने उन्हें गोया तसल्ली दी थी। बहरहाल वो माँ थी। नजरियाती इख्तिलाफात एक तरफ, मगर वो बला की अनापरस्त भी थी। यह न की जंग ही तो थी कि उनके वालदैन अपनी औलाद की तरफ से गफलत बरत रहे थे। फराह ना जाने कब और कैसे वालदैन की अंदरूनी चपकलिश से फरार हासिल करते हुए नेट चैटिंग की तरफ मसरूफ हुई थी, और कब उसकी ज़ात के अंदर शिकस्तगी की फिजा परवान चढ़ना शुरू हुई। लड़के तो अपना वक्त बाहर आने जाने में कैसे भी सर्फ कर लेते हैं। ऐसे हालात में जब वालदैन अपनी अपनी जंग अना के परचम बुलंद किए अपने अपने वफादात को अहमियत देने लगे, तो खुसूसन बेटियां ज़रूर असर पसीर होती हैं। सुमान के अंदर तो रंज की फिजा गहरी होती चली गई।
بہت محبت اور نرمی سے فرح کا ہاتھ تھام لیا۔ سارا دن مصروف رہی ہوں، تھکن ہو گئی ہے، میں ادھر اس کے پاس ہی سو جاتی ہوں۔ بخار میں انسان ویسے بھی خاصا حساس ہو جاتا ہے، نہ جانے رات کب آنکھ کھلے۔ تم فکر نہ کرو، جا کر آرام کرو، اور ہاں، کھانا کھاؤ گے یا کھا کر آئے ہو؟ سمان کی آنکھوں سے بہن کے لیے چھلکتی محبت اور چاہت محسوس کر کے وہ بھی فوراً نرم ہوئی تھی۔ فرح کی پیشانی چومتے اسے بھی ہدایت کرتے آخر میں پوچھا تھا، ہاں کھا لیا ہے، چائے کی طلب ہو رہی ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ رات کی چائے ہمیشہ فرح ہی بناتی تھی، اور سمان چاہے رات کو کتنا ہی لیٹ آئی یا طاہرہ بیگم سو جائے، فرح جا کر اس کا انتظار ضرور کرتی تھی۔ کھانے چائے کا پوچھتی تھی، وہ ان سب بھائیوں سے کتنی محبت کرتی تھی، کوئی ان سے پوچھتا۔ نہیں، رہنے دے، آپ پہلے ہی تھک گئی ہوں گی، میں ساجدہ سے کہتا ہوں۔ سمان کو رات کے اس پہر اپنے لیے ماں سے کچھ کروانا اچھا نہ لگا، سو فوراً منع کیا۔ ماجدہ تو اپنے کوارٹر میں چلی گئی ہے، برتن دھوتے ہی میں نے اسے بھیج دیا تھا، میں خود بنا لیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سمان کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔ کپڑے چینج کر کے کچن میں آ کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی تھی۔ علی اور سعید احمد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سمان احمد چائے کا مگ لیے بیرونی تمام لائٹس آف کرنے، لاک چیک کرنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ آج سارا دن بہت مصروف اور بھاگ دوڑ میں گزرا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر چائے پیتے سمان احمد کو اپنے جسم کی تھکاوٹ کا احساس ہوا تھا۔ پہلے آفس، شام سے پہلے چچی کے ہاں جانا، وہاں سے واپسی پر گھر آنا، فرح سے ساری تفصیل جانا، پھر واپس میٹنگ کے لیے جانا، اور اب پھر گھر آنا، اور فرح کی یہ کنڈیشن۔ آج کا دن صرف جسمانی ہی نہیں، ذہنی مشقت پہ بھی بہت بھاری رہا تھا۔ چائے پیتے سمان احمد کے ذہن میں بھی ایک کشمکش برپا تھی۔ فرح کو پہلے ای میلز کرنے والا، پھر پھول کارڈ خط بھیجنے والا، اور اب کالز کے ذریعے تنگ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سمان جتنا بھی سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ سمان نے چائے ختم کر کے اپنا موبائل نکالا تھا۔ CLI پر درج نمبر سمان احمد کے حافظے میں فیڈ ہو چکا تھا۔ سمان نے فوراً نمبر ملایا تھا۔ سمان کے پاس اتنا کریڈٹ ضرور تھا کہ وہ آرام سے تفصیلی طور پر تنگ کرنے والے کو اپنے موبائل سے جج کرتا۔ 5ویں بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو؟ بہت فریش، بھاری مردانہ آواز تھی۔ آواز اتنی جانی پہچانی محسوس ہوئی کہ سمان ایک سیکنڈ کو کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ ہیلو سمان احمد، یار کال کی ہے تو بول کیوں نہیں رہے؟ خیریت ہے نا؟ ہیلو ہیلو سمان، بولو یار۔ سمان کو اپنے دائیں کان میں گونجنے والی آواز اپنے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی مانند برستی محسوس ہوئی تھی۔ سمان احمد کو ایک لمحے کو محسوس ہوا تھا کہ اس نے غلط نمبر ڈائل کیے ہیں۔ جلدی سے اسکرین دیکھی، مگر نمبر وہی تھے، مگر آواز۔ ہیلو، یہ تمہارا نمبر ہے؟ سمان کو اپنی آواز بھی اجنبی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، یہ میرا ہی نمبر ہے، دوسری طرف سے تصدیق کی گئی تھی۔ دوسرا نمبر پھر کس کا ہے؟ سمان نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اب اس کے لہجے میں صاف اور واضح تلخی تھی۔ وہ بھی میرا ہی ہے، دراصل یہ نمبر بہت کم یوز کرتا ہوں، چند ایک کو پتہ ہے یہ نمبر۔ ویسے تمہیں یہ نمبر کہاں سے ملا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سمان کو اپنے اعصاب پر جذباتیت کا دورہ پڑتا محسوس ہوا، ورنہ وہ تو خاصے ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کا مالک تھا، مگر لگتا تھا اس آواز نے اس کے اندر کی ساری سوجھ بوجھ ختم کر دی تھی۔ فرح سے۔ سمان احمد کو اپنی ہی آواز اجنبی اور سرد سی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری طرف بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ اور وجہ کیا ہے؟ یقیناً سمجھ تو گئے ہوگے۔ تمہیں شرم تو نہ آئی یہ سب کرتے ہوئے، یہ کھیل کھیلتے ہوئے؟ اتنا تو سوچا ہوتا کہ تمہارا ہم سے کیا رشتہ ہے۔ فرح اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی جسے تم نے اپنی مطلب براری کے لیے منتخب کیا۔ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ بولو، جواب دو، کیا مقصد تھا تمہارے اس سارے ڈرامے سے؟ سمان احمد کو اول تو غصہ نہیں آتا تھا، مگر جب آتا تھا بلا کا آتا تھا۔ اس وقت بھی گرجتے برستے سمان احمد اور دھیمے سلجھے ہوئے سمان احمد میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ دوسری طرف موجود شخصیت بالکل خاموش تھی۔ سمان میں اسے کچھ توقف سے اپنے آپ کو بحال کرتے لب کوشائی بھی کی تو زبان سمان کے نام پر ہی سا چھوڑ گئی۔ شٹ اپ! نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ یہ گھٹیا حرکت تو ایک کچے ناسمجھ ذہن کی مرہونے میں رنت ہو سکتی ہے۔ تم جیسے میچور شخص سے یہ توقع میں نہیں کر سکتا۔ کیا حق حاصل ہے تمہیں میرے بہن کے جذبات و احساسات سے کھیلنے کا؟ اتنا تنہا اور لاوارث سمجھ رکھا ہے تم نے اسے، جو کچھ کرتے پھرو کسی کو خبر بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری ایک حرکت کی بدولت وہ اس وقت سب سے نظریں چرانے پر مجبور ہے۔ کاش تم اندازہ لگا سکتے تم سے بات کرنے کے بعد وہ کیسے ہوش و حواس سے بیگانہ بخار سے تپ رہی ہے۔ سمان، میں تو مذاق
बकवास नहीं करो। सुमान ने इंतहाई गम और गुस्से से मगलूब उसे अपनी बात मुकम्मल ही नहीं करने दी थी। तुम्हारे लिए ये मजाक था? वाह, क्या बेनियाजी है। किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। शेम ऑन यू। आइंदा मेरे घर के नंबर पर कॉल करने से पहले 100 बार सोचना। तुम्हारा ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है, और तुम्हें ये घटिया खेल खेलने के लिए वहां ऐसी लड़कियों की खासी तादाद मिल जाएगी। गुस्से से फोन काटते सुमान अहमद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। गुस्से से मोबाइल बिस्तर पर पटक कर सुमान ने इस्तिरारी कैफियत में कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा। गुस्से से टहलते सुमान को अपने आसाब चटकते महसूस हुए, यूं जैसे खून की जगह बारूद भर दिया गया हो रगों में। इधर से उधर टहलते मोबाइल फिर बज उठा था। सुमान ने कदम रोककर बिस्तर की तरफ देखा था। करीब आकर मोबाइल उठाकर देखा तो स्क्रीन पर जगमगाने वाला नंबर देखकर सुमान अहमद का गुस्सा फिर समनेजे पर जा पहुंचा था। इडियट। सुमान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। 1 सेकंड बाद फिर मोबाइल बज रहा था। सुमान ने इंतहाई गुस्से से मोबाइल ऑफ करके सिरहाने फेंक दिया था। सुमान अहमद को दोबारा अपनी नॉर्मल कैफियत में आने के लिए अच्छी खासी जद्दोजहद करना पड़ी थी, वरना आसाब तो यूं बिखरे थे गोया कोई लावा फटा हो। इतना बड़ा धोखा, इतना संगीन मजाक, इतना लाउबालीपन। सुमान जूं जूं सोच रहा था सुलग रहा था। किसी के लिए शायद ये सब जहनी तस्कीन थी, मगर सुमान अहमद को इस जुर्रत पर अपनी ही रगों में खून की जगह शरारे दौड़ते महसूस हो रहे थे। फराह उसकी निहायत सुलझी हुई समझदार बहन थी। माँ बाप की अंदरूनी चपकलिश ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। फराह के आंसू सुमान को एक दफा फिर अपने सीने पर गिरते शोलों को हवा देते महसूस हुए तो सुमान ने इंतहाई तैशो गजब से अपनी मुट्ठी अपने बाएं हाथ पर मारी थी। मुसलसल होती बेल से उसकी नींद टूटी थी। इंतहाई नागवारी से शारिक जुमान ने अतराफ में देखा। सिरहाने पड़ा मोबाइल मुसलसल बज रहा था। अपनी नींद में ये खलल उसे बहुत गिरा गुजरा था। तहम नींद टूट चुकी थी। कोहनियों के बल थोड़ा सा ऊपर खिसकते उसने कॉल रिसीव की थी। हेलो सर, सुबह फजर के करीब एहसान मंजूर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल से अपनी बेगम शहवाना और अपनी सास को लेकर अपने फ्लैट में वापस जा रहा था कि कुछ नामालूम लोगों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। एहसान मंसूर का ड्राइवर तो मौके पर ही जाँ बहक हो गया था, तहम बाकी तीनों शदीद जख्मी हैं। बल्कि एहसान मंसूर को तो सिरे से कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ गोली उसके बाजू को छूते हुए गई थी। लगता है फायरिंग करने वालों का हज़फ वो था भी नहीं। शहवाना और उसकी माँ की हालत काफ़ी सीरियस है। अस्पताल में फौरन रेस्क्यू सर्विस ने पहुंचाया था। एसपी अंजुम खान इत्ला मिलते ही फौरन अस्पताल पहुंचे थे। इफ्तिखार तो जैसे ही मुझे पता चला कि एहसान मंसूर ने निकाह की सारी कार्रवाई पर कॉन्टिनेंटल के एक कमरे में सर अंजाम दी है तो फौरन उसे आगाह किया था। वो वहां चला गया था, उससे राब्ता हुआ है, वो भी अस्पताल पहुंच चुका है। अब आप बताएं हम क्या करें? एसपी अंजुम खान बार बार आपका पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ से सुनाई जाने वाली खबर ने शारिक जुबान की सारी नागवारी पल में खत्म कर दी थी। वो लम्हों में हवास में लौटा था। तुम लोग उधर ही रहो, अभी मैं नहीं आ सकता, मगर मुझे तो मुसलसल इतला देते रहो। एसपी अंजुम खान को कह देना सारी कार्रवाई का पता चलाए। अब मजा आएगा लाला मंसूर से मुकाबला करने का। बड़ा आया था मुझे धमकियां देने वाला। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस सारे अमल में किसका हाथ हो सकता है? सर, साफ नजर आ रहा है ये लाला मंसूर की ही हरकत हो सकती है। जिस तरह गोली ने सिर्फ उसके बेटे को छुआ है, साफ पता चल रहा है। इमरान ने आराम से तज्जिया किया। और शहवाना और उसकी माँ, उनकी कंडीशन कैसी है? क्या ख्याल है, बच पाएंगी या नहीं? पुरसोच अंदाज था, बल्कि किसी हद तक सफाक भी। सर, मुश्किल से ही। दरअसल अभी कुछ कह नहीं सकता। खून बहुत बह चुका है। रेस्क्यू टीम मौके पर ही पहुंच गई थी, वरना शायद जाए वक़ुआ पर ही दोनों दम तोड़ देती। अच्छा था ख़त्म हो जाती, कम अज़ कम एक ज़माना इन दोनों के शर से तो बचा रहता। नफरत और हक़ारत से उसने अपने अंदर का गुबार निकाला था। वैसे रेस्क्यू को किसने कॉल की थी, या वो खुद ही पहुंच गए थे खुदाई फौजदार बन के रेस्क्यू वाले? सर, एहसान मंसूर ने ही कॉल की थी। इस वक्त वही होश में था। रेस्क्यू वालों से तो यही इत्ला मिली है, बाकी वल्ला आलम। ओके, ठीक है, मुझे एक एक पल की इत्ला दो। इफ्तिखार को कहना एक लम्हे को भी वहाँ से ना हटे। मैं अगर मुनासिब समझा तो अस्पताल का चक्कर लगाऊंगा, वरना मुआसरत। उसने ये कहते कॉल बंद कर दी थी। इमरान से जिस कदर सुकून से वो बात कर रहा था, हकीकतन में ऐसा बिल्कुल न था। उस खबर ने उसके आसाब को मुंतशिर कर दिया था, बल्कि एक अच्छा खासा झटका लगा था। मोबाइल उसने बेपरवाही से साइड में फेंका था।
गुजरी शब का एक एक लम्हा उसके तो दिमाग पर परछाई की तरह छुआ था। अपनी तमाम जिसारतें, नवेरा का रोना, गिड़गिड़ाना, इल्तिजाई करना, मज़ाहमती अंदाज, कस्में, वादे देना, शारिक ज़ुमान के चेहरे का एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। अपनी शख्सियत का यह दोहरापन खुद अपने लिए भी निहायत अजियत ही नहीं तकलीफ दे भी था। बाथरूम के दरवाजे की तरफ लपकते उसके पैरों में नवेरा की शाल उलझी थी। वो फौरन ठहर गया था। एक हाथ में क्लिप था तो दूसरे हाथ से उसने झुककर सुर्ख शाल उठा ली थी। चादर सोफे पर डालते दोबारा बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा। न जाने वो अंदर किस हाल में थी। उसे एकदम तशवीश लाहक हुई। रात नवेरा का अंदाज मर मिटने वाला था। घड़ी की तरफ निगाह की, सुबह के 6 बज रहे थे। शारिक ज़ुमान ने अपने कमरे पर निगाह डाली। कमरा तो जूं का तूं था, मगर कालीन पर जगह जगह टूटी चूड़ियां बिखरी पड़ी थी। शारिक ज़ुमान का अपना जिस्म झटकों की जद पर महसूस हुआ। दरवाजे के पास आकर उसने हैंडल घुमाया था, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। शारिक ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। नवेरा, साथ में आवाज़ भी दी थी, मगर कोई रद्द अमल ना आया। नवेरा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। पहले से ज़्यादा सख्ती से उसने दरवाज़ा पीटा था। 5-6 मिनट इंतज़ार किया था। नवेरा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। जूं जूं एक एक पल गुजर रहा था, शारिक ज़ुबान के अंदर वहशतें फिर जुनून-ख़ेज़ी का लिबादा ओढ़ने लगी थी। नवेरा, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसकी बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही थी, यूं जैसे कोई लम्हा बलम्हा उसे बर्फ़ के बरादे में धकेलता जा रहा हो। वो चीख उठा था। इतने सख्ती से दरवाजे को ठोकरे मारते, हैंडल को मरोड़ते वो बस दरवाज़ा तोड़ देने को था, जब एकदम से दूसरी तरफ खटका हुआ था, यूं जैसे दूसरी तरफ चटकनी गिराई गई हो। शारिक ज़ुबान फौरन पीछे हटा था। नवेरा ने दरवाज़ा खोल दिया था। शारिक ज़ुबान की निगाहें बेख्तियार उस पर उठी थीं, मगर उस पर ज़्यादा देर ठहर ना सकें। गुजरी रात की सारी वहशतें नवेरा के वजूद से छलकती उसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर गई थी। रोती सूजी आंखें, सूजा चेहरा, बिखरे बाल, मगर नवेरा का वजूद चीख चीख कर अपने ऊपर रात गुजरने वाली कयामत बता रहा था। नवेरा, उसने पुकारा था। एहसास जुर्म था या क्या था, आवाज़ खुद ब खुद पस्त थी। खबरदार, तुमने एक लफ्ज़ भी कहा, मैं तुम्हारी वहशत की भेंट चढ़ जाऊं, तुम्हारी भूल है। मुझे यहाँ से जाना है, इसलिए दरवाज़ा खोला है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो फिर बहुत बुरा करोगे। अपने साथ मैं तुम्हारी भी जान ले लूँगी। सारी रात की अजियत, ठंडे यख फर्श पर नंगे पाँव, कांपते लड़ते जिस्म समेत वो एक ऐसी क़यामत से गुजरी थी जो उसे बहुत बहादुर बना चुकी थी। वो वहशी ज़ख्मी शेरनी की तरह झपटने को तैयार थी, हर हद से गुजर जाने को। रात जो भी हुआ, मैं ये नहीं कहता कि उसमें मेरी सोच या मेरी ज़ात का कोई अमल दखल नहीं है, मगर ये सच है जो मैं तुम्हें चाय का कहते हुए मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। उसे बिल्कुल सही सलामत सामने पाकर कुछ पुरसुकून होते हुए वो पीछे हट गया था। नवेरा ने कुछ उलझ कर उसे देखा। उसका वजाहती अंदाज एक बनावट लगा। शारिक के अल्फाज, उसका पीछे हटना, उसे ड्रामा महसूस हुआ। शारिक ज़ुमान ने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर उसकी तरफ उछाली थी, जो नवेरा के ऊपर जा गिरी थी। नवेरा ने चादर समेटते हैरान होकर शारिक ज़ुमान को देखा और फिर चादर अपने वजूद पर लपेट ली। गुजरी शब के असरात कुछ हद तक छुप गए थे। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मेरी सोहबत, मेरी आदत भी ठीक नहीं, मगर मैं कसम खाता हूँ मैंने तुम्हें इस अंदाज में कभी नहीं देखा था। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। पता नहीं अपने अंदर के जुनूनीपन में मैं रात क्या कर बैठा, मगर जो हो गया उसे भूल जाओ। भूल जाओ, नवेरा ने नफरत से टोक दिया। नफरत के इस कदर शदीद मुजाहिरे पर शारिक ज़ुमान खामोशी से उसे देखे गया। आपके लिए भूल जाओ कहना आसान है, मगर मेरे लिए भूलना बहुत मुश्किल है। बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ। मैं तो आपके ख़ानदान की ही बेटी थी। अपनी ही इज्जत पर हाथ डालते हुए कुछ तो सोचा होता। ना चाहते हुए भी वो रो दी। शारिक ज़ुमान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था। तुम जा सकती हो अब, दरवाजे के सामने से हटकर उसको कहा था। नवेरा को अब भी हैरत और ताज्जुब का दौरा पड़ा। आंसू ठिठर गए। ये शख्स इतनी जल्दी हाथ पे आया शिकार जाने दे रहा है, या उसके अंदर इंसानियत वाकई जाग गई है, या फिर ये भी कोई चाल है। मशकूक नज़रों से उसे देखते, कालीन पर बिखरे अपने जूते पहनते वो मुसलसल बेयकीन थी। उल्टे कदमों चलते दरवाजे के करीब पहुंचते हुए भी वो खौफजदा थी कि किसी भी लम्हे ये शैतान उसे फिर धोखा ना दे दे। कमरे से निकली तो पीछे बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ था। उसने हड़बड़ाकर दरवाजे को देखा और फिर खुद को। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वो जिंदा और बाइस्मत वापस आई थी। एक क़यामत की रात गुजरी थी जिसके आसार उसके वजूद पर थे, जिन्हें उसकी शान ने छुपा दिया था, मगर एक क़यामत उसके अंदर बर्पा हुई थी।
नवीरा के आंसू ज़ारो क़ितार बहते चले गए। या अल्लाह, उसे यकीन आता चला गया कि अल्लाह ने उसकी सुन ली है। बाथरूम के ठंडे यख फर्श पर उसने सारी रात सिर्फ एक ज़ात को पुकारा था। शैतान की शैतानियत ने दम तोड़ा था या शारिक के अंदर इंसानियत ने अंगड़ाई ली थी। वो तो सिर्फ अल्लाह की रहमत से फैज़याब हुई थी। नफरत से हाथ पे पकड़ा ब्लेड और मुट्ठी में दबा ब्लेड वाला पैकेट उसे कमरे के दरवाजे पर ही फेंक दिया। दौड़ते हुए वो अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ी थी। शाकरा अभी भी सो रही थी और अम्मा भी। उसने अलमारी से अपना बैग निकालकर कपड़े निकाले थे। बात लेकर वो बाहर निकली तो 6:30 हो रहे थे। उसने जाए नमाज बिछा ली थी। अल्लाह ने उसे इंतहाई जिल्लत और रुसवाई से बचाया था। उस पर अल्लाह का शुक्र वाजिब था। रो रो कर रुकू और सुजूद करते उसे पता नहीं चला कि सारी रात अपने हवास को काबू में रखते वो कब बेहवास होकर जमीन पर गिरी थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी थे। तुम कॉलेज नहीं जा रहे? उसे उसी तरह घरेलू हुलिये में देखकर हमीद साहब ने पूछा। नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, 10 बजे के करीब जाऊंगा, आज पीरियड लेट होंगे। आराम से चाय पीते उसने कहा था। रिमशा ने नाश्ता करते एक अचटती निगाह डाली। आजकल वो कुछ ठंडा ठार या फिर बड़ा संजीदा महसूस हो रहा था। फिर ऐसा करो, रिमशा को उसके कॉलेज छोड़ दो। मुझे अभी एक डीलर से मिलना है। 8:30 बजे की टाइमिंग है। तुम घर पर ही हो तो ये काम कर लो। हमीद साहब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। अच्छा खासा कारोबार था। अपनी तबीयत और फितरत से हटकर फारूक भाई या दीगर के साथ कारोबार शेयर करने के बजाय अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से उन्होंने अपना यह ज़ाती कारोबार शुरू किया था, जो अब रफ्ता रफ्ता खासे वसी पैमाने पर फैलता जा रहा था। दरअसल जब नीयत साफ हो और मेहनत करने का जज्बा हो, खूब से खूब तर के जुस्तजू हो, तो फिर तरक्की करना कुछ नामुमकिन भी नहीं होता। और यही वो कर रहे थे। जी अच्छा। खिलाफ तवक्को बगैर भमी उचकाए या चेहरे पर बल लाए उसने हामी भर ली थी। रिमशा के अंदर खुद बुद सी होने लगी। इतना नॉर्मल रवैया उसे कतई हजम नहीं हो रहा था। रजा हमीद ने बाइक निकाली तो वो भी चादर ओढ़े बैग लिए चली आई। रजा ने गेट के सामने बाइक स्टार्ट की तो रिमशा उचक कर उसके पीछे बैठ गई। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बाइक जैसे ही मेन रोड पर चढ़ी, रिमशा ने पूछ लिया। किस बात का गुस्सा? दूसरी तरफ खासा ताज्जुब था। यही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे कॉलेज छोड़ने जा रहे हो। दूसरी तरफ रजा बिल्कुल चुप रहा था। रिमशा को कतई नाकामी हुई थी। वो क्लस कर रह गई। वो जज्बाती सी लड़की थी, हर चीज़ को इंतहा पर जाकर सोचती थी। अब भी जज्बातियत की जद पर आ गई। अब भी रजा की चुप से उसे लाताल्लुकी का वाज़े इजहार महसूस हुआ, अपने वजूद की वाज़े नफी। न जाने क्या समझता है ये तुरम खान खुद को, जैसे किसी रियासत का नवाब है। मुझे भी शौक चढ़ा हुआ है इस उल्लू के सराखों पर बिठाने का। दिमाग खराब है मेरा, अकल गुम हो गई है मेरी। वो सारा रास्ता जलती भुनती रही, मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती रही। रजा ने उसके कॉलेज के सामने बाइक रोकी तो वो भी चौंकी। वो ख्यालों में इतनी मगन थी कि पता ही नहीं चला कि कब कॉलेज आया था। आज तो बड़ी शराफत से रजा ने उसे कॉलेज पहुंचाया था, बगैर तेज रफ्तार के। उसे शदीद हैरत का झटका लगा था। वापसी पर कौन लेने आएगा? उतर कर सामने आते उसने रजा को देखा। सादा रात वाले सूट में भी वो अच्छा खासा गुड लुकिंग और हीरो टाइप लग रहा था। गेट से गुजरती कई लड़कियों ने मुड़कर देखा तो फरहत और इंबसात के साथ मलकियत और फख्र के एहसास ने भी रिमशा के अंदर फुआर से बिखेर दी। पता नहीं, शायद अब्बू भी आ जाए। मैं तो यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। आज तो रजा की तरफ से अच्छी खासी शराफत थी। रिमशा को फिर झटका सा लगा। दोनों ही हालतें जंग में रहने वाले थे, मगर किसी एक की पसपाई दूसरे को अब खुशी के गहरे जज्बे के बजाय हैरानगी तफक्कुर के एहसास से दोचार कर रही थी। अब यहीं खड़े रहना है या फिर अंदर भी जाना है? रिमशा वहीं खड़ी थी जब करीब से गुजरते किसी मनचले ने भरपूर विस्लिंग की थी, जिसे दोनों ने देखा और महसूस किया था। रजा के चेहरे की सुर्खी एकदम बढ़ी थी। सख्ती से उसे टोक दिया था। रिमशा अपनी जगह खजल होते फौरन गेट से अंदर घुस चुकी थी। स्टूपिड। सर झटकते उसने दोबारा बाइक स्टार्ट कर ली थी। घर जाने के बजाय उसने बाइक को शारिफ जुमान के घर की तरफ मोड़ लिया था। रात रुकू सजूद करते हुए वो रूहानी तौर पर पुरसकून हो गया था, मगर नवेरा एहसान की तरफ से एक गैर महसूस से खलिश फिक्रमंदी की लहर उसको परेशान करती रही थी। यूनिवर्सिटी लेट जाने का शेड्यूल तय करते उसने पक्का इरादा किया था कि यूनिवर्सिटी जाने से कबल वो नवेरा से ज़रूर मिलेगा, वरना उसे यकीन था वहाँ जाके भी सारा वक्त वो खदशात और तफक्कुरात में घिरा रहेगा। चौकीदार बाबा ने उसे सलाम करते गेट खोल दिया था। रजा बाइक अंदर ले आया था। अंदर आते हुए उसने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। सारे घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, जैसे यहाँ किसी इंसान का वजूद ही ना हो।
राहदारी से गुजरते इधर उधर देखते वो बड़ी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा था। अंदर का मंजर देखते ही वो दरवाजे पर ही ठिठक गया था। बिस्तर पर पड़ा वजूद और नवेरा की कलाई चेक करते शारिक जुमान को देखकर रजा को अपने वजूद में झटके से महसूस हुए। तो नवेरा ठीक नहीं, मेरा दिल मुझे दुरुस्त साइन दे रहा था। नवेरा के बेसुध सरापे और जर्द चेहरे को देखते हुए वो फौरन अंदर बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? बिस्तर के किनारे टेके नवेरा की कलाई थामे शारिक जुमान ने ही नहीं, वाजदा बेगम और शाकरा ने भी उसे देखा था। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठा। पता नहीं क्या हुआ इसे, रात तो अच्छी भली थी, सुबह मेरी आंख खुली तो ये जाए नमाज पर उल्टी गिरी थी, मेरी तो चीखें निकल गईं। शाकरा को उठाया तो ये खुद उसे इस हाल में देखकर परेशान हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है शारिक अपने कमरे में था, फौरन उठाकर बिस्तर पर डाला। डॉक्टर को बुलाया है, अभी चेक करके गया है, इंजेक्शन लगा गया है, कह रहा था कि थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अम्मा उसे तफसील से बता रही थी। वो लब भींचे सब सुनते नवेरा के जर्द चेहरे को देखा गया। कोई चेंज नहीं अम्मा, मेरा ख्याल है अस्पताल ले जाना चाहिए, इसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है, हर दूसरी बीट में सो रही है। नवेरा की कलाई छोड़कर वो किनारे से उठते हुए बहुत संजीदगी बल्कि सते हुए चेहरे से कह रहा था। रजा तो शारिक के अल्फाज सुनकर गिंग रह गया था। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? बैठे बैठे बच्ची पर क्या क़यामत आ गई कि दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं हो रही? डॉक्टर तो कह रहा था संभल जाएगी। अम्मा ने फौरन अपना कलेजा थामा था। डॉक्टर तो ये भी कह कर गया था कि अगर अगले आधे घंटे में हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हुई तो फौरन अस्पताल मुंतकिल करे। तिब्बी इमदाद मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। आप देख नहीं रही, कोई इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही। एकदम वो तल्ख हुआ था। झुंझुलाते हुए उसने अंदर की अजियत बाहर मुंतकिल की थी। शाकरा, जाओ लाउंज में टीवी के पास मेरी गाड़ी की चाबी है, लेकर आओ। दोबारा बेसुध पड़े वजूद को देखते उसने कहा था। अंदर आंधी तूफान का मौसम था। शाकरा को एकदम पहिए लगे थे। अगले ही सेकंड वो चाबी ले आई थी। रजा, तुम गाड़ी ड्राइव कर लेते हो? जी। रजा, जो अभी तक सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था, एकदम अलर्ट हुआ। तो गाड़ी स्टार्ट करो, मैं इसे लाता हूँ। उसे गाड़ी की चाबी थमाकर वो नवेरा की तरफ झुका। अम्मा, अब फिक्र नहीं करें, ये ठीक हो जाएंगी, मैं कॉल करूँगा। शाकरा, मेरे बेड पर मेरा मोबाइल और वॉलेट है, उठा लो, हरी अप। नवेरा को बाजू में उठाए वो तेजी से बाहर निकल गया था। वो जो कर चुका था उसका खमियाजा अब उसे सारी उम्र भुगतना था। सते हुए जहन से वो यही सोच रहा था। एहसास निदामत ऐसा था कि जिसका सफ़र शायद ही ख़त्म होता। अब सारी ज़िंदगी उसे निदामत समेत गुजारनी थी या फिर एक कतई कदम उठाना था। जहन की बेचारगी न जाने किस किस रुख पर महवे परवास थी। उन्हें अस्पताल पहुंचने में कतई देर न हुई थी। 9 बजे के बाद स्कूल और कॉलेज का जोर कम हो जाता था। काम धंधे पर भी निकलने वाले कब के निकल चुके थे। सड़कें पुरसकून थी। फिर नवेरा की कंडीशन के पेश नज़र रजा ने गाड़ी भी काफ़ी तेज़ रफ्तारी से ड्राइव की थी। नवेरा को फौरन आईसीयू में ले जाया गया था। शारिक जुमान ज़ाती मरासिम वाले अस्पताल में लाया था। यहाँ के डॉक्टर से उससे खास ताल्लुकात थे। फौरन ट्रीटमेंट दिया गया। मरीज़ा को लगता है कोई गहरा शदीद सदमा पहुंचा है। हार्ट कंडीशन नॉर्मल नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर लो है, शदीद खतरनाक हद तक। जब तक दिल को इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाता कुछ कहा नहीं जा सकता। आप दुआ करें मरीज़ा का ब्लड नॉर्मल कंडीशन में पावर करे। जब तक ब्लड रेज नहीं करेगा कुछ भी कहना बईदस वक्त है। रजा शारिक के पास ही खड़ा था। उसके पूछने पर कि वो कैसी है, डॉक्टर ने ये बताया था। रजा को अपना चेहरा फक होता महसूस हुआ। डॉक्टर उसका फक चेहरा देखकर हमदर्दी से कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गए थे। शारिक भाई, ऐसी क्या बात हुई? रात तो मेरी बात हुई थी इनसे, वो अच्छी भली थी। ये बैठे बैठे उन्होंने क्या टेंशन ले ली जो इस शदीद टेंशन का बायस बनी है? वो तो बिल्कुल सेहतमंद नॉर्मल थी। रजा अपने अंदर के इस्तिराब को बिल्कुल नहीं छुपा पाया था। बिल्कुल फितरी रद्द अमल था। मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर के पास हूँ। तुम नबील को कॉल करके असल सूरत हाल से बाखबर करवाओ। अपने सर्द सपाट बेतासुर चेहरे समेत रजा के जवाब में शारिक जुमान जेब से मोबाइल निकालकर उसे थमाते आगे बढ़ गया था। रजा ने नासमझ अंदाज में शारिक जुमान के अंदाज अतवार और रवैये को जांचा। कहीं कोई चीज़ गलत थी क्या? वो शदीद कश्मकश का शिकार हो चुका था। वो उसकी वजह को समझने से बिल्कुल कासिर था। खामोशी से उसने कॉल करके नबील को इतला कर दी थी। नबील ऑफिस के लिए निकल चुका था। नवेरा की कंडीशन सुनकर फौरन आने को कहा था। उसके बाद उसने अपने और फिर फारूक चचा के यहाँ इतला दी थी। नवेरा की शदीद बल्कि सीरियस हालत अब हर किसी के इल्म में आना लाजमी था।
मोबाइल बंद करके वो बेबसी और बेचारगी से ग्लास वॉल को देखने लगा, जिसके पार वो डॉक्टरों की टीम के रहमो करम मशीनों में जकड़ी गोया सारी दुनिया से बेनियाज हो चुकी थी। 1 घंटे के अंदर अंदर नवेरा की तबीयत का सुनकर सभी भागे चले आए थे। वहां आने वालों में सबसे पहले नबील भाई थे, फिर नवाज, फारूक थे, जिनके मोबाइल नंबर पर रजा ने इतला दी थी। घर से रजिया बेगम चली आई थी कि फारूक साहब काम पर निकल चुके थे। हमीद साहब भी चले गए थे। जुबैदा बेगम खबर पाते ही तन्हा आई थी, जबकि नबीला भाभी और अम्मा दोनों आई थी। नवेरा की कंडीशन जूं की तूं थी। ब्लड प्रेशर की हालत नॉर्मल नहीं हो रही थी, हार्ट बीट की भी वही हालत थी। खालदा बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल था। ना जाने क्यों उन्हें लग रहा था रात देखा गया भयानक ख्वाब सच हो गया। नबील खुद इधर से उधर टहलते, होंठ को चलते सख्त इस्तिराब में था। नवाज फारूक हैरान था कि कल तक तो वो हंसती मुस्कुराती लड़की जिंदगी की तमाम दिलकशियां समेटे आन ही आन में क्यों कर इस बिस्तर पर आ लेटी थी, और हालत भी ऐसी कि गोया पूरे आलम से नाराज हो चुकी हो, जैसे हम जी चुके और जीने की चाहत नहीं रही। सभी एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे थे। मर्द हजरात सरगर्म अमल थे, इधर से उधर भागते दौड़ते असल सूरत हाल की पल पल रिपोर्ट मिल रही थी। डॉक्टर कह रहे हैं अगर मजीद वो 1 घंटा इस हालत में रही तो खुदा न खास्ता उसका हार्ट फेल भी हो सकता है। बीपी बहुत लो है, ईसीजी मुसलसल काम कर रही है, डॉक्टर खुद भी मसरूफ हैं, दुआ करें। नबील डॉक्टर से सारी सूरत हाल जानकर अम्मा के पास आकर बता रहा था। उनका दिल फटने को था, बस फूट फूट कर रोई। नबीला गाहे बगाहे तसलियां देती रही। जुबैदा बेगम, रजिया बेगम सभी गमजदा, दिलगीर, नम आंखों से उसके लिए दुआएं मांग रही थीं। अम्मा ने कोने में चादर बिछा के नमाज हाजत की नीयत बांध ली। नमाज इधर से उधर टहलते ग्लास वॉल के पास आ खड़ा हुआ, जिसके पार वो खुद थे। शारिक जुमान ने सिर्फ एक लहजे को नवाज फारूक को देखा था, फिर रुख बदल गया। वो साइड बेंच पर बैठा बिल्कुल गुमसुम और मेहर बलब था। कुछ भी नहीं पता तुम्हें उसे हुआ क्या था। कल तक तो नॉर्मल थी, ये अचानक कैसे क्या मुसीबत आ पड़ी कि दिल का आर्जा लाहक हो गया। कितनी ही देर दूसरी तरफ खाली निगाहों से देखने के बाद वो वहां से हटकर शारिक के पास बेंच पर आ बैठा था। शारिक जुमान का चेहरा मुतगय्यर हो रहा था। एहसास निदामत ने एक और चोट लगाई थी। वो उसी तरह साकिन और जामिद सर झुकाए बैठा रहा। नवाज उसकी तरफ से कुछ पल जवाब का मुंतजिर रहा था, फिर खुद ही कहने लगा, रजा के कॉल करने पर तो मैं हैरान रह गया था। नवेरा इस तरह अस्पताल में हो, नामुमकिन, मगर यहाँ आकर अपनी आंखों से देख कर भी यकीन नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, चलोगे तुम दोनों? नबील भाई दोनों के पास आ ठहरे थे। दोनों को क्या था, शारिक जुमान नवाज को उठते देखकर खुद भी उठ गया। मरीजा का दिल खून पावर करने में दिक्कत पेश कर रहा है, क्या इन्हें पहले भी ऐसा कोई अटैक हुआ है? डॉक्टर शेब ने उनसे पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बहन तो बहुत परफेक्ट फिजिक की मालिक रही है, बड़े से बड़े सदमे में भी ये नॉर्मल रही है। शायद ही सालों बाद बुखार में मुब्तला हुई हो भी तो मौसमी नज़ला जुकाम भी बहुत कम रहा है इसको। हमारे तो ख़ानदान में भी किसी को दिल का आर्जा लाहक नहीं रहा, फिर भला वो कैसे इस मर्ज का शिकार हो सकती है? इस मर्ज का ताल्लुक ज़रूरी नहीं मौरूसी ही हो, बाज़ औक़ात इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ भी बर्दाश्त से ज़्यादा पड़े तो दिल की धड़कन मुतासिर होती है। कोई सदमा, कोई टेंशन, प्लीज़ हमसे कुछ न छुपाएं। हमें लग रहा है कि मरीज़ा के नर्व्स पर भी असर हुआ है, जिसकी वजह से उनका दिल ज़्यादा मुतासिर हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं आई। ये तो गमों में भी मसलहत तलाश करने वाली लड़की है, तारीकी में भी रोशन पहलू निकाल लेती है। ख़ानदान में भी दूर दूर तक किसी फौरी सदमे या टेंशन वाली बात नहीं हुई। चंद दिनों बाद इसकी शादी है, ये तो बहुत खुश थी। नबील की वजाहत पर डॉक्टर ने सर हिलाया था। ओके, आप लोग हौसला रखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल की हालत कदरे संभलती है तो इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी के बहुत इम्कानात होंगे। डॉक्टर ने तसल्ली देकर वहाँ से चला गया। नवाज, ये क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, दुआ करो वो बच जाए। नबील ने आगे बढ़कर नवाज का सहारा लिया था। नवाज ने धीरे से उसे सीने से लगा लिया। हौसला रखो, वो बच जाएगी इंशाअल्लाह, उसे कुछ नहीं होगा। अगर तुम भी हौसला हारोगे तो अम्मा और भाभी को कैसे हौसला दोगे? प्लीज़ बी ब्रेव। बहुत अपनायत स्वभाव से समझाते नबील भाई की पुश्त नवाज ने थपकी थी। शारिक जुमान खामोशी से वहाँ से हट गया। मजीद जिन चार जानलेवा घंटों के इंतज़ार और डॉक्टरों की अनथक कोशिशों से नवेरा का बीबी अप होना शुरू हुआ था। ईसीजी मशीन की कंडीशन कदरे बेहतर थी। डॉक्टर्स बहुत पुरुमीद थे।
ہارٹ بیٹ اب پہلے کی طرح مس نہیں ہو رہی تھی، خون کی آمد و رفت بھی نارمل ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مریضہ کا اعصابی نظام شدید کشمکش سے باہر آ رہا تھا۔ نرو سسٹم کی حالت بہتر ہونے کی دیر تھی کہ اگلے گھنٹے تک نویرا کا بی پی خاصی حد تک امپروو ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے ان سب کو مریضہ کی بہتر کنڈیشن میں امپروو کرنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ نویرا کو کسی بھی لمحے ہوش آ سکتا تھا، تاہم نرو سسٹم ابھی بحال نہ ہوا تھا۔ اسے کچھ گھنٹوں تک مکمل پرسکون رکھنے کی ضرورت تھی۔ خبر کیا تھی؟ گویا نئی زندگی ملی تھی سب کو۔ اماں نے وہیں بچھی چادر پر نفل کی نیت باندھ لی تھی۔ اس کی کنڈیشن کے باعث ڈاکٹرز نے اسے ابھی تک انتہائی نگہداشت کے روم میں ہی رکھا ہوا تھا، جب تک وہ خود سے ہوش میں نہ آتی اسی طرح مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ سب کے لیے فی الحال یہی بہت تھا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ نویرا کی طبیعت کا سن کر فاروق چچا بھی آ گئے تھے۔ دوپہر تک حمید صاحب بھی چلے آئے تھے۔ شام کا وقت قریب تھا، دونوں وقت مل رہے تھے جب نویرا کی پلکوں نے جنبش کی تھی۔ وہاں موجود نرس نے فوراً ڈاکٹر شعیب کو بلا لایا تھا۔ وہ فوراً نویرا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ باقی سب ڈاکٹر کو تیزی سے اندر جاتے دیکھ کر گلاس وال سے اندر دیکھنے میں مصروف تھے۔ اللہ تیرا شکر، نویرا کو پلکیں کھولتے دیکھ کر اماں رو دی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد نویرا کی حالت پہلے سے بہتر تھی، وہ بات کر سکتی تھی، اماں کو یاد کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شعیب نے اماں کو اندر بھیجنے کو کہا۔ اماں، ماجدہ بیگم کو دیکھ کر وہ سسک اٹھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ای سی جی مشین کو ہٹا دیا گیا تھا، مگر دیگر مشینیں ابھی بھی کام کر رہی تھیں۔ میری بیٹی، میری جان، میری چندہ۔ اماں کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ وہ انہیں کتنی عزیز تھی۔ نیک سعادت مند اولاد ماں باپ کے سینے کو کیسے ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کے دل سے اس کی خوشیوں کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ کوئی ان کے دل کو چیر کر دیکھتا، وہ اس وقت بیٹی کی اس تکلیف پر کیسے رو رہی تھیں۔ رونا نہیں میری جان، بالکل نہیں رونا۔ ابھی خدا خدا کر کے طبیعت سنبھلی ہے، پھر بگڑ جائے گی۔ اپنے دل کو مضبوط رکھو۔ میری بیٹی تو بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ اب بھی مطمئن رہو، فکر نہ کرو، چھوٹی سی تکلیف تھی، ختم ہو جائے گی۔ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے، اس کے ہاتھ چومتے، وہ اسے والہانہ پیار کرتے پچکار رہی تھی۔ نویرا کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے، سسک سسک کر بلک بلک کر سسکی، حتیٰ کہ اس کی سانس پھر اکھڑنے لگی۔ اماں جی پلیز اب باہر چلی جائیں۔ نرس نے فوراً اماں کو وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ ڈاکٹر شعیب فوراً نویرا کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ باقی سب اسے دوبارہ ڈاکٹرز کے رحم و کرم میں دیکھ کر بس آنسو بہا کر رہ گئے۔ وہ ان سب کے دلوں میں دھڑکن بن کر جی رہی تھی، سو آنسو نکلنا لازمی تھے۔